رخت دل باندھ لو زنیرہ بانو قسط نمبر 8 دکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ظلم پھر ظلم ہے۔ اجلی لمبی سڑک پر گاڑیاں دوڑتی جا رہی تھیں۔ سڑک خالی تھی، اس لیے تو ریسنگ کا مزہ آ رہا تھا۔ ارمان کی سفید مہران سب سے آگے تھی، اسے کچھ فاصلے پر ایک اور دوست تھا، باقی سب دور تھے۔ ارمان نے ممکنہ تیز رفتار میں گاڑی بھگاتے ہوئے جی پی ایس پر نظر دوڑائی۔ وننگ پوائنٹ قریب تھا۔ اس نے کار کی رفتار مزید تیز کر لی اور اگلے چند لمحوں میں وہ چیک پوائنٹ پار کر گیا تھا۔ اپنی فتح کی خوشی میں اسے نعرہ مارا اور کار ریورس میں موڑتے ہوئے باہر نکلا۔ دیکھ الو کے پٹھے، میں جیت گیا نا۔ اس نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے پچھلی کار میں بیٹھے دوست کا مذاق اڑایا۔ وہ سیاہ پوش سے اسے کچھ دور آ کر رکی۔ اندر بیٹھے نوجوان نے برا سا منہ بنایا اور درمیانی انگلی دکھائی۔ ارمان ہنسا اور سیاہ پورش کے بونٹ پر آ بیٹھا۔ چلو ڈاکٹر صاحب، آپ ہار گئے، اب ٹریٹ بھی دو۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب دوست ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ ارمان خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور علی حیدر منہ بسورے بیٹھا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یار، یہ ریسنگ تجھ پر تو جیسے سیکیٹرسٹ کا کام نہیں ہے۔ وہ مسلسل علی کو مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ علی نے گھور کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے آگے جھکا اور ٹیبل پر رکھی ہلکی پیلی رنگ کی بوتل اٹھائی۔ ارمان بے اختیار چکا۔ مت کر علی، تو نے ابھی گھر جانا ہے، ڈرائیو کیسے کرے گا؟ علی نے سنی انسنی کر دی۔ گلاس کے فوائد نظر انداز کرتے ہوئے بوتل منہ سے لگا لی، پھر اسے میز پر رکھا اور آگے کو جھکا۔ تم کہانیاں بنانے والے لوگ ڈاکٹر کو ایزی مت لو۔ سب دوست اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ ڈاکٹر عارف، جس نے کچھ عرصے بعد اس کی کئی نسوں کی پٹی کرنا تھی، وہ بھی وہی تھی۔ ادھر علی کہہ رہا تھا، میں علی حیدر، پاگل اور سنکیوں کا دوست۔ اس کی آواز اب لڑکھڑا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ شراب اثر دکھا رہی تھی۔ میں ایک معمولی سے جرنلسٹ ارمان منیم کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ایک ریسنگ کمپٹیشن میں علی حیدر سے جیت کر دکھائے۔ نہ کر علی، تجھے پتا ہے نا میں جیت جاؤں گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن علی حیدر اس وقت خوب نشے میں تھا۔ وہ آگے کو اٹھا اور ارمان کا گال سہلاتے ہوئے ہنسا۔ نہیں جانے من، میری پورش تیری 2 سالہ پرانی مہران کو ہرا دے گی۔ بول، لگائے گا شرط؟ ارمان نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، باقی دوستوں نے میز بجا ڈالی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ رگڑا۔ علی ہنسا اور ہنستے ہوئے وڈکا کی بوتل منہ سے لگا لی۔ لیونگ روم میں بیٹھا 11 سالہ ارہم رنگین کاغذوں اور کلر پینسلز میں گھرا ہوا تھا۔ اس کی گود میں اسکیچ بک تھی اور وہ وقفے سے ایک نظر سٹینسل پر ڈالتے ہوئے مارکر ہاتھ میں تھامے ڈرائنگ کر رہا تھا۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے، لیکن وہ اس جانب متوجہ نہ تھا۔ اس کی ساری توجہ ڈرائنگ پر مرکوز تھی۔ قریب ہی صوفے پر 18 سالہ ماریا بڑے مزے سے ناول پڑھتے ہوئے چاؤمین کھا رہی تھی۔ وہ ناول میں مگن تھی۔ ناول کا کوئی سنیک پیک چل رہا تھا۔ اس کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ پکڑی چاپ سٹک میں اٹکی اسپیگٹی معلق رہ گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور دونوں میں سے کسی نے بھی حرکت نہ کی۔ علی ڈگمگاتے ہوئے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل ابھی بھی تھی۔ ٹائی کی ڈھیلی کرتے ہوئے وہ سیدھا لیونگ روم میں ہی آیا۔ ارہم کو دیکھا تو اس نے بوتل ایک طرف رکھی اور بے ہنگم انداز میں ہنستے ہوئے قالین پر بیٹھا۔ قریب بیٹھے ارہم کو زور سے بھینچ دیا۔ ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے ارہم کے کال پر چٹکی کاٹتے ہوئے پوچھا تو ارہم نے زور سے کہا۔ اس کی نظریں اسکیچ بک پر تھی۔ ڈرائنگ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ وہ اب ارہم کی گالوں کو بار بار چومتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ایک پوئم کا بیک گراؤنڈ ہے، بچہ مر گیا اور اس کا باپ رو رہا ہے۔ ویری سیڈ۔ وہ مسکرایا اور نظر پینٹنگ کو دیکھا۔ وہ گھٹنوں پر بیٹھا بوڑھا آدمی تھا جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ نیچے پوئم لکھی ہوئی تھی، The good times are gone and all that I'm left to do is mourn۔ ویسے دکھی ڈائلاگ پڑھ کر دل دکھی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو جلدی سے اٹھا۔ اسے صوفے پر بیٹھی ماریا نظر آئی جس کی چاپ سٹک سے اسپیگٹی گر گئی تھی۔ وہ کتاب میں پوری طرح منہمک تھی۔ اوگاتھا کرسٹی۔ علی اب اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ناول۔ اس نے مختصر سا جواب دیا تو علی نے کتاب کی طرف دیکھا۔ منظر دھندلا رہا تھا، آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ اسے کتاب کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سر جھکا لیا اور ماریا کے کندھے پر رکھ دیا۔ تب ماریا چونکی۔ اس نے کتاب پر سے نظریں ہٹائیں اور جھمبے سے اسے دیکھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ قبرستان سے۔ وہ کندھے پر پوری طرح جھک گیا۔ پھر سے ڈرنک کیا؟ نہیں، اس نے نیند میں جواب دیا۔ تبھی ارہم بولا، پاپا جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ ماریا وہ بوتل دیکھ سکتی ہے جو ٹیبل پر پڑی ہے۔ آپ نے وہ بوتل پی ہے، آپ نے ڈرنک کیا ہے۔
सो झूठ मत बोलें। मारिया ने गुस्से से उधर देखा, फिर एक नज़र बोतल को देखा। उसके चेहरे पर नाराज़गी के आसार थे। उसे नाराज़ देखकर अली ने उसका हाथ थामा। ओके सॉरी, आइंदा नहीं पीऊँगा, प्रॉमिस। मुझसे भी सॉरी करें। और हमने फ़ौरन सर उठाया और अली ने कानों को हाथ लगाया। कहाँ फँस गया मैं? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। मारिया दोबारा नावल पर झुक गई और हम ड्राइंग बनाने लगा। अली ने दोबारा मारिया के कंधे पर सर रखा। वो कालीन पर बैठे और हमको देख रहा था। इसका 11 साला बेटा, ज़हीन और खूबसूरत, बिल्कुल इकरा जैसा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली, या नशे के सबब बंद हो गई। अरमान समेत सभी दोस्त आ चुके थे। अरमान बड़ा खुश था, तैयार श्यार, अपनी मेहरान लिए वो आ चुका था। उसने अली को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। अली ने भी जवाबन अपना हाथ बुलंद किया। वो अंधेरी ओट में था, सो अरमान को इशारा समझ नहीं आया। सड़क उजली और लंबी थी। टाइम सेट किया जा चुका था। 5 कार्स एक कतार में खड़ी थी। एक दोस्त ने इशारा किया। गाड़ियां फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ने लगी। इब्राहिम मलक अपनी पूरी रफ्तार से गांव की कच्ची पगडंडी पर दौड़ा जा रहा था। इसके पीछे 2 गार्ड्स भी भाग रहे थे। वो इन 2 गार्ड्स के पीछे सारे गांव वाले मिशनें उठाए भाग रहे थे। गालियां बकते हुए वो सब गुस्से से मगरूब, रात की तरीके से बेपरवाह डंडे सोटियां उठाए भागे जा रहे थे। पकड़ो इस कमीने को! गांव का सरबराह चीखते हुए सबसे आगे था। मेरी बेटी की इज्जत लूटने चला था। पकड़ो इस बदकार की औलाद को! इब्राहिम का भागते-भागते सांस फूलने लगा था। दोनों गार्ड्स अब इसके साथ आ गए थे। दोनों के पास बंदूकें थीं। इब्राहिम सांस लेने के लिए रुका तो गार्ड्स उसके करीब आए हुए थे। आपने क्या किया छोटे मलक? गांव वाले आपके पीछे क्यों पड़े हैं? इससे पहले कि इब्राहिम कुछ कहता, दूसरा गार्ड कहने लगा, वो आपको बदकार बुलाते हैं छोटे मलक। कहते हैं कि आपने चौधरी की बेटी के साथ। बकवास ना करो तुम दोनों। इब्राहिम पूरी तरह चीखा, मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह। आज अगर मैं उसके अल्फाज दरमियान में रह गए। नशीबी इलाके से गांव वाले चीखते चिल्लाते मशालें और डंडे लहराते हुए ऊपर आ रहे थे। इब्राहिम की गिग्गी बन गई। उसने भागना चाहा लेकिन पाँव रपटा और वो वहीं गिर गया। गार्ड उसके दिफा के लिए आगे बढ़े। गांव वाले ऊपर चढ़ आए थे। एक गार्ड ने इब्राहिम को सहारा दिया और दूसरे ने गांव वालों पर बंदूकें तान ली। पहला गार्ड भी इब्राहिम के ऐन सामने खड़ा हो गया और बंदूक का रख गांव वालों की तरफ कर दिया। कुत्ते भौंकते हुए आगे बढ़े तो गार्ड ने उन्हें भी निशाने पर ले लिया। ओ बंदूकबाज, बंदूक नीचे रख और लड़का हमारे हवाले कर दे। एक बूढ़ा आदमी चीखा। तभी चौधरी बोला, तू सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, पीछे हट जा जवान। ये मुंडा आज मेरे हाथों कत्ल होगा। मैंने क्या किया है? पीछे से इब्राहिम मिनमिनाया। चौधरी की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बंदूक की परवाह करते हुए आगे बढ़ा। पूछता है तूने क्या किया? मेरी जवान बेटी पर हाथ डालने के बाद ढिठाई दिखाता है? तुझे तो मैं आज सबक सिखाऊंगा, बदकार की औलाद। चौधरी गुस्से से आगे बढ़ा तो बाकी गांव वालों ने भी डंडे लहराए। गार्ड्स ने बंदूकों के सहारे इन्हें रोकना चाहा लेकिन वो सब बढ़ते ही आ रहे थे। कहाँ 2 और कहाँ 10। इब्राहिम को इन सब के तेवर खतरनाक लगे। वो एकदम पीछे हटा, फिर 2 कदम पीछे हटा, हटता चला गया और सड़क पर उतर गया। कान के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। इसने खौफजदा आंखों से देखा और सड़क के ऐन दरमियान में खड़ा था और सामने से कार भागी आ रही थी। अरमान की कार आज भी सबसे आगे थी। वो अली को देखकर तंजिया हंसते हुए कार आगे ले आया। अली को बेख्तियार गुस्सा आया। आखिर इज्जत का सवाल था। उसने कार पूरी स्पीड में छोड़ी और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ता हुआ भागा। कार पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। वो अब अरमान से भी आगे निकल गया था। चेक पॉइंट बस कुछ दूर था। पता की खुशी में उसने स्टीरियो ऑन किया। कार बेहंगम आवाज़ों से जी उठी थी। भागती रही पर अचानक उस साफ सड़क पर कोई नौजवान नजर आया। वो अचानक ही किसी भूत की मानंद सामने आया था। अली दम रह गया। उसने जल्दी से स्टीयरिंग मोड़ा। कार ने एक गोल चक्कर काटा और दोबारा सीधी होकर नौजवान की आ लगी। एक दिलदोज चीख इब्राहिम के हलक से बरामद हुई। वो अपनी टांगे पकड़े गिरता चला गया। स्टीयरियो अभी तक बज रहा था। अली ने जल्दी से ब्रेक्स लगाए। नौजवान कुछ ले जाने से बच गया लेकिन इसके बावजूद करा रहा था। इसका बॉडीगार्ड फौरन उसके करीब आया। अली भी कार से उतरा। रेस जीतने का नशा अचानक उतर गया था। भाई तुम ठीक हो? ये क्या कर दिया कमीने? गार्ड पूरी कुवत से चीखा। इब्राहिम चीखने की हालत में ना था। गांव वाले भी शशतर देख रहे थे। इनको संभालता गार्ड पलटकर देखने लगा। अली ने कुछ कहना चाहा, तभी गार्ड ने बंदूक का रुख इसकी तरफ कर दिया। अली ने हाथ उठा लिए। कुत्ते मुसलसल भौंक रहे थे। गार्ड मुश्तिल नजर आ रहा था। देखो देखो, मैंने जानकर नहीं किया। सड़क पर खड़ा लड़का तुझे नजर कैसे नहीं आया? मैं वाकई नजर नहीं आया। ये कहीं और से आया है। अली अटक-अटक कर बोल रहा था, खून में लथपथ
नौजवान को देखकर इसके औसान खता हो रहे थे। इब्राहिम जिंदा था, गहरे-गहरे सांस ले रहा था। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, मुझे शायद कुछ कर सकूँ। डॉक्टर है तू? गार्ड ने बेयकीनी से देखा। उधर मजमा में मौजूद चौधरी चीखा, भाइयों, इससे पहले कि डॉक्टर अपनी तकनीक लगाए, चलो इस जख्मी को ऊपर पहुंचा दें। गांव वालों ने हाँ में हाथ मिलाए। वो सब आगे बढ़े लेकिन गार्ड ने इन पर बंदूक डाल ली। पीछे रहो, आगे बढ़े तो सबको गोलियों से भून दूंगा। और तू? वो अली से मुखातिब हुआ। इधर आ। अली आगे आया। इब्राहिम जमीन पर पड़ा करा रहा था। अली उसके करीब दुजाना हो गया। इब्राहिम की दोनों टांगें कुचली गई थी। वो बमुश्किल सांस ले रहा था। अली हक तक से उसे देखता रहा। वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था। तभी अरमान की कार भी आकर रुकी। उसके बाकी दोस्त वहां आ गए थे। वो सब हैरत से ये सब देख रहे थे। उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। अली ने जेरे लब कहा। उधर चौधरी चीखा, ये आज अस्पताल नहीं जाएगा, मेरे सामने दम तोड़ेगा। उसने डंडा लहराया तो गार्ड ने बंदूक लहराई। लेकिन अब बहुत हो गया था। गांव के एक आदमी ने जलती मिशन उस तरफ फेंकी। गार्ड पीछे हट गया। रास्ता साफ था। चौधरी डंडा लेकर आगे बढ़ा और इब्राहिम की रसीद किया। गार्ड ने दोबारा इब्राहिम को छुड़ा। हाथापाई की नौबत आ पहुंची थी। वो दोनों इधर लड़ रहे थे। अली सुन सा बैठा था। वो एकटक उस खून से लथड़े बदन को देख रहा था जो तेजी से सांस ले रहा था। अली, अली यहाँ से चल। अरमान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। अली बेजान सा उठ गया था। एक गार्ड ने फायर खोल दिया। गांव वाले मुंतशिर हो गए। दूसरा गार्ड इब्राहिम को उठाकर भागा। अरमान ने अली को कार में बिठाया और सड़क की तरफ बढ़ा। वो कुछ कह रहा था जो अली को सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने मैंने एक आदमी को मार दिया। वो जेरेला बड़बड़ाया तो अरमान फौरन बोला, तूने उसे नहीं मारा, वो गलती से तेरी कार के आगे आया। और सबसे अहम, वो मरा नहीं है। इससे भी अहम बात, वो कोई करतूत करके गांव से भागा है। तूने देखा नहीं वो चौधरी कितने गुस्से में था। लेकिन अली हैदर बेचैन था। वो घर आया और सीधा वॉशरूम गया। शावर चलाया और उसके नीचे खड़ा रहा। बार बार वो खून से तर नौजवान का निचला धड़ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सब ठीक हो जाएगा अली, मारिया भी कह रही थी। अरमान ने उसे सब बता दिया था। अरहम सो रहा था। वो दोनों अली की लाउंज में लिए बैठे थे। अली के चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। उसने जल्दी से गिलास में पानी डाला और मुंह से लगा लिया। आईसीयू में मौजूद इब्राहिम मलिक का ऑपरेशन जारी था। वही गार्ड जो उसे सड़क से उठाकर लाया था, अंजुम मलिक और इब्राहिम मलिक के बाप से मुखातिब था। छोटे मलिक तो बस गांव के सैर सपाटे पर निकले थे। रात के करीब हम वापस आ रहे थे जब इब्राहिम ने कहा कि वो चहलकदमी करना चाहता है। वो बड़ी सड़क पर आ गए थे। इनकी गलती नहीं है साहब, गलती तो इस रेसर की है जो कार भगा कर ला रहा था। उसने कुछ नहीं देखा साहब। इब्राहिम साहब को कुचल कर निकल गया। उसकी मदद के लिए भी नहीं रुका। मैंने छोटे मलिक को अस्पताल लेकर आया हूँ। वो कहानी मिक्सअप करके बताई गई थी, वरना असल मामला कुछ और था। इब्राहिम मलिक वाकई सैर के लिए ही गांव आया था, लेकिन खेत में काम करती लड़की को देखकर इसका दिल बेईमान हो गया और इसी खेत में उस लड़की को बेबस कर दिया था। लड़की रोती धोती घर गई। बाद में मालूम हुआ कि वो चौधरी की बेटी थी। इब्राहिम मलिक हरदर्मी और गुरूर में वहां से न गया। अलबत्ता रात को सब गांव वाले उसको सबक सिखाने के इरादे से उसके टेंट में घुस गए तो उसे भागना पड़ा। फिर जो हुआ वो गार्ड जानता था, लेकिन वो छोटे मलिक को बचा गया था। ऑपरेशन कामयाब हुआ। इब्राहिम मलिक बच गया, लेकिन छोटा मलिक हमेशा के लिए दो टांगे गंवा बैठा। अंजुम मलिक मुश्तिल थे। इलेक्शन सर पर थे और कोई आवारा शराबी उनके बेटे को कुचलकर चला गया। इस वक्त कोई इंतकामी कार्रवाई करना खतरे से खाली न था। पार्टी का नाम खराब हो सकता था। लेकिन अंजुम मलिक ने अपने हर कार्य दौड़ा दिए थे। अगले ही सुबह सब इनको मालूम हो चुका था। उसे सियापुर से टक्कर मारी गई है। मैंने पता कराया साहब, पोर्स का मालिक एक डॉक्टर है, प्राइवेट अस्पताल में बैठता है। अली हैदर नाम है इसका, शादीशुदा है और एक बीवी और एक 11 साल बेटा है। बेटे की बाबत सुनकर अंजुम मलिक में इंतकाम का जज्बा जड़ी मजबूत करता गया। वो 13 अक्टूबर की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। सुबह के 11 बजे थे। आज अरहम की सालगिरह थी। आज वह 12 साल का होने लगा था। उसने स्कूल से छुट्टी कर ली थी। वो अली के साथ गिफ्ट शॉप पर आया था। ये अली का दस्तूर था। एक तोहफा जो अरहम की मर्जी से दिया जाता था और दूसरा तोहफा अली का सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट शॉप में खड़ा अरहम मुख्तलिफ चीजें देख रहा था जब अली ने फोन की घंटी बजी। उसने कान से लगाया। डॉक्टर हैदर? हाँ जी। उसे लहजा गैर शनासा महसूस हुआ। मैं अंजुम मलिक हूँ। मुझे जानते हो? अली के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। उसने सर झटका और कान मसला। यस सर। वो समझ नहीं सका कि ऐसी अजीम सी हस्ती उसे क्यों फोन करेगी। तुम्हारे बारे में काफी सुना है डॉक्टर। कुछ अर्सा पहले तुमने एक अस्पताल बनवाया था।
वो एक अच्छी काविश थी। वो मेरा एक ख्वाब था सर, जिसको मैंने हकीकत का लिबास पहनाया है। कल की निस्बत वो पुरसकून लग रहा था। गुड, वेरी गुड। वैसे हैदर मेरा भी एक ख्वाब है। मुझे नई नई कार्स में बहुत दिलचस्पी है। इसलिए मैं एक रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का इनेकाद करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम काफ़ी अच्छे रेसर हो डॉक्टर। अली का चेहरा यकलख्त मान पड़ा। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैंने गलत किया? मेरी इत्तला के मुताबिक तो डॉक्टर अली हैदर की एक ब्लैक पोर्श अपने दोस्तों में बहुत मकबूल है। वही ड्राइव कर रहे थे ना तुम कल रात जब रेस लगा रहे थे? कौन? अब उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। चेहरे पर रंगों का एक परेशान-कुन इम्तिज़ाज था। मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा मेरा मान था डॉक्टर। दूसरी जानिब से अंजुम मलिक फनकारा, पर तूने इसे दोनों टांगों से महरूम कर दिया। तूने मेरे बेटे को मफलूज कर दिया कमीने। सुनो, तुम क्या कह रहे हो? मैंने मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो बस अचानक मेरी गाड़ी के सामने आया। प्लीज़, प्लीज़ देखो देखो तुम। वो नॉन-स्टॉप फ़ोन सख्ती से भींचकर कह रहा था। कहानी का एक और पहलू भी था। एक सियासतदान का लड़का जो एक गाँव की मामूली सी लड़की की इज़्ज़त लूटकर भागा और किसी कार से टक्कर हो गई, तो वो 2 टाँगों से महरूम हो गया। ऐसी सूरत में कार वाला मुजरिम न बनता। लेकिन अंजुम मलिक को जो कहानी मालूम थी, वो कुछ यूँ थी। एक शराबी रेसर जिसने अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए एक 17 साला नौजवान की टाँगें कुचल दी। इस सूरत में कार वाला फंदे का हकदार था। रेसिंग का बड़ा शौक है ना तुझे? चल, आज एक रेस लगा। अंजुम मलिक की गुस्से और तंज की मिली-जुली आवाज़ अली हैदर को हुक्म दे रही थी। तेरा बेटा तुझसे बहुत दूर एक पब्लिक प्लाज़ा में अकेला भटक रहा था। देखते हैं, तुझ तक पहुँचता है या हमें। अली सुन खड़ा रह गया, इधर-उधर देखा। अरहम वाक़ई उसके पास न था। उधर अंजुम मलिक बोला, अरहम अली, है ना? वही खूबसूरत सा भूरे बालों वाला बच्चा जिसकी आज सालगिरह है। अली के औसान खता हुए। कुछ कहे बगैर उसने फ़ोन जेब में डाला और भागता हुआ गिफ्ट शॉप से निकला। अपनी पोर्श से बेनियाज़ वो पैदल ही प्लाज़ा की तरफ भागने लगा। 11:30 हो रहे थे। चमकीली धूप ने हर शय को लपेट में ले रखा था। सर्दी से मुअत्तल हुई ज़िंदगी आज रवां-दवां थी। तभी तो सड़क पर खूब रश था। गाड़ियाँ हॉर्न बजा रही थीं। इन्हीं गाड़ियों के सैलाब में वो हर शय से बेपरवाह भाग रहा था। सूरज की तपिश उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। उसका बेटा, उसका इकलौता 11 साला बेटा, उसका अरहम, वो सब लोग इस 11 साला बच्चे को ले गए थे और उसे एक दूर इफ्तितादा प्लाज़े में छोड़ दिया था। अली भाग रहा था, मुसलसल भाग रहा था। कई दफ़ा वो किसी कार तले आता-आता रुका, कई दफ़ा वो ठोकर खाकर गिरा। प्लाज़े तक पहुँचते-पहुँचते 12 बज गए थे। वो हाँफता हुआ पूरे मॉल में घूम रहा था। मॉल से निकलकर वो बाहर सड़क पर आ गया, यहाँ भी रश था। रंग-बू और मर्द-ओ-ज़न का सैलाब था। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो कुछ और नहीं कह सका। दूसरी तरफ कहकहा बुलंद हुआ। बेटे को तकलीफ़ पहुँचे तो बाप को कितनी तकलीफ़ होती है ना डॉक्टर? मुझे भी बहुत हुई और अब मुझे इसी तकलीफ़ के साथ जीना है मगर इस आवाज़ में तंज शामिल हो गया था। अगर मैं अपने बेटे के साथ ये हश्र करने वाले दरिंदों को थोड़ा-सा ज़ख्मी करूँ तो मुझे चैन मिलेगा। आँखें खोल डॉक्टर, तेरा बेटा तुझसे चंद कदमों के फासले पर ब्लैक रॉड लैंप के करीब खड़ा है। अली ने बेख्तियार नज़रें घुमाई। ब्लैक लैंप? कौन-सा ब्लैक लैंप? उसे जल्द ही वो रॉड लैंप नज़र आ गया। उसके साथ ही 11 साला लड़का खड़ा हैरान और परेशान इधर-उधर देख रहा था। अरहम, अली बड़बड़ाया और ज़ेरे लब कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसने फ़ोन गिरा दिया सो उसे अंजुम मलिक के आखिरी अल्फाज न सुनाई दिए। और तेरी ब्लैक पोर्श उसकी तरफ आ रही है अली हैदर। अली चीखता हुआ उसकी तरफ भागा। अपने बेटे का नाम पुकारता हुआ लोगों को हटाता हुआ आगे बढ़ा। अब की बार जो वो ज़ोर से अरहम का नाम लेकर चीखा तो अरहम ने किसी अनजाने खदशे के तहत सर उठाया। इधर-उधर देखा। उसे सड़क की दूसरी तरफ लोगों के हल्के में माल से निकलता हुआ अली दिखाई दिया। पापा, वो ज़ेरे लब बोला और फिर हाथ हिलाया। मैं इधर हूँ पापा। वो दफ़अतन खुद भी आगे बढ़ा। अली का दिमाग घूम गया। उसने सड़क पर अपनी ही स्याह-पोश फुल स्पीड पर भागती हुई आती देखी। कोई शख्स था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और कार चलाए आ रहा था। फिर अली ने चेहरा मोड़ा। सड़क की दूसरी तरफ से उसका इकलौता बेटा सर झुकाए दौड़ा आ रहा था। सड़क पर गिरे फ़ोन से आवाज़ आई, गेम ओवर डॉक्टर। अली ने एक नज़र पोर्श को देखा, फिर अरहम को, फिर अपनी कुव्वत से चीखा, अरहम हटो बेटा। अरहम शशते से खड़ा हो गया। उसने बेख्याली से सर उठाया। स्याह पोश पूरी कुव्वत से भागती चली और अरहम अली को रोंते हुए दूसरी तरफ निकल गई। कसूरवार। सड़क पर जमा लोगों में से कई के हलक से चीखें बरामद हुई। सब इस स्याह पोश से दूर होते चले गए। पोश में बैठा शख्स बाहर निकलता और इत्मीनान से चलते हुए एक तरफ बढ़ गया। सबने उसे जाते देखा।
लेकिन बेहिस इंसानों में से किसी ने भी उसे नहीं रोका। सब इस बच्चे को देखने लगे जो सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। हटो, हटो मेरे सामने से। कोई अकब से चीखता हुआ भागता आ रहा था। लोग हटते गए। वो नफीस लिबास में मलबूस अच्छा खासा लंबा चौड़ा मर्द एक लम्हे के लिए शशतर रह गया। ये ख्वाब है, बुरा ख्वाब, उसने सोचा और आंखें मसली। लेकिन कुछ भी गायब ना हुआ। वो अब थके थके कदमों से चलता हुआ आगे आया और बच्चे के करीब खड़ा हो गया। और हम गहरी गहरी सांस ले रहा था। इस पर साइद ने गलबा पाया तो उसने बमुश्किल सर उठाया। पापा। अली की ज़बान जैसे कंग हो गई थी। जिस्म साथ देने से इनकारी था। वो बेखुद सा सड़क के ऐन दरमियान इस लहूलुहान बच्चे के करीब बैठ गया। अरहम। वो इसे एक नज़र में ही पहचान गया था। अभी चंद लम्हों पहले वो गिफ्ट शॉप में थे और वो हंसते हुए उससे गिफ्ट के मुतालिक पूछ रहा था और उसका बेटा झिंपे-झिंपे अंदाज में एक गिफ्ट पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। मेरा बेटा। उसने एक ही लम्हे में उसके नाजुक से जिस्म को जलती सड़क से उठाकर सीने से लगाया। उसका दायां हाथ अरहम के गाल पर था और बायां हाथ इसकी नब्ज पर। पापा। वो बोला तो इसके लबों से खून की बारीक सी लकीर चेहरे पर फैलती चली गई। दर्द हो रहा है पापा। तभी वैसे ही एक बेरंग सी लकीर अली हैदर के गाल पर लुढ़कती चली गई। उसे इस वक्त किसी शय का होश न था। कौन इकरा, कौन मारिया, कौन सी रेसिंग, कौन सा रेसर, कैसी शराब, कैसा बदला। उसे बस अपने बेटे की परवाह थी। वो बेटा जिसे 11 सालों तक उसने एक मामूली चोट भी नहीं लगने दी थी, जिसे माँ और बाप दोनों की मोहब्बत दी थी, जिसको अपनी हर दिल अजीज बीवी की आखिरी निशानी निशानी समझकर बेइंतहा मोहब्बत दी थी। वो आज उसकी गोद में लेटा था, लहूलुहान, अटकती जान, टूटी सांसें, बेआवाज आहें। पापा। वो दोबारा बोला तो खून की एक और लकीर उसके मुंह से निकली। अब अब मुझे ठीक कर दो। वो डॉक्टर था। जान बचाना इसका पेशा था। लेकिन वो भला कैसा डॉक्टर था? दिमाग पढ़ने वाला, दिमाग की गुत्थियां सुलझाने वाला। वो अगर जख्म पर मरहम रखने वाला इंसान भी होता तो मौत से कैसे लड़ लेता? एक और लकीर इसकी दूसरी आंख से लबों तक खींचती चली गई थी। वो अपने 11 साला बेटे को क्या कुछ कहता, उसे क्या बताता कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता था। उसे बताता कि वो उससे कितना प्यार करता था। उसने बेख्तियार होते हुए कुछ कहे बगैर अपने बेटे का चेहरा चूम लिया। उसकी उंगलियों के तले कलाई में जुम्बिश न हुई। हरकत मर गई। नब्ज थम गई। अली ने बेख्तियार सिसकी ली और बेजान वजूद को सीने से लगा लिया। सड़क पर मौजूद लोग इसके इर्द गिर्द हल्का बनाए खड़े थे। आने वाले तमाम दिन उनके लिए अजाब से कम न थे। अली ने कितनी ही कोशिश की थी, अपने कितने दोस्तों से मदद मांगी थी, लेकिन सब कंधे उचका देते थे। इलेक्शन करीब थे। अंजुम मलिक की हमायती ताकतवर तादाद में ज्यादा थे। एक अकेला डॉक्टर क्या कर लेता? एक अकेला डॉक्टर कर भी क्या सकता था? उसने अपने 11 साला बेटे को अपने हाथों से दफनाया था। वो बेजान मासूम जिस्म जिसने अभी लंबी जिंदगी जीनी थी, वो मट्टी तले दबा दिया गया था। उस दिन महज डॉक्टर अली हैदर की दुनिया से रुखसती का दिन था। उस दिन वो इंसान मर गया था। कब्रिस्तान में अकेला बैठकर गुजारों कतार रोया था और जब घर वापस आया तो गुमसुम था। फिर आने वाले हर दिन वो गुमसुम रहा। मारिया उसे बहलाने की कोशिश करती। अरमान उसे हंसाने की कोशिश में लगा रहता, लेकिन वो खाली खाली निगाहों से उनको देखता रहा। वो 25 फरवरी की शाम थी जब अरमान उनके घर आया। अली के पास बैठा। वो मुसलसल उसे कुछ कह रहा था जब अली की आंखों में आग सी जली। वो बहुत अरसे बाद आज यूं अचानक बेदार सा हुआ था। ये तेरी वजह से हुआ अरमान। बेतासुर से लहजे, बेतासुर से चेहरे के साथ वो अरमान को कह रहा था। तूने मुझे रेस लगाने पर उकसाया। तेरी वजह से मैंने चैलेंज कबूल किया। तू ये सब ना करता तो मैं रेस नहीं लगाता। वो लड़का मेरे कार तले ना आता, ना कोई जल्लाद बदला लेने की खातिर मेरे बेटे के टुकड़े करता। अली ये तो क्या? 2 हफ्ते बाद उसके मुंह से ऐसा तल्ख कलाम सुनकर अरमान शर्मसार था। मारिया अलग हक्का बक्का थी। मेरा कसूर नहीं था अली, कसूर तो हाँ। वो भारी लहजे में बोला हुआ मुसलसल अरमान को देख रहा था। तेरा कसूर नहीं था, कसूर तो इस परिंदे का था ना। सजा उसे मिलनी चाहिए। वो एक झटके से सोफे से उठा। मारिया किसी एहसास के तहत उठी, लेकिन अली का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। अली हैदर खुद अपने बेटे का बदला ले लेगा। वो आनन फानन बाहर निकल गया। अरमान उसके पीछे भागा। मारिया इन दोनों के पीछे लग गई, लेकिन अली जैसे गायब हो गया था। उसकी स्याह पोर्श भी गायब थी, गोया वो कार चलाकर ही जा रहा था। उजली लंबी सड़क पर उसने कार फुल स्पीड पर छोड़ दी थी।
खामोश सड़क पर वो मुखालिफ सिमत में ड्राइव कर रहा था जब इसकी कार का एक्सीडेंट होते-होते बचा। दूसरी कार वाला उसे बेनुक्त सुनाकर निकल गया, लेकिन इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। कितनी ही देर वो इससे आपोश में बैठा सुलगती नज़रें इमारत पर जमाए बैठा था, जो यूं ही सफ़ेद लेक्स गार्ड की हिफाजत में इमारत से बाहर निकली। उसने पोर्श उसके पीछे दौड़ाई। गार्ड महसूस कर सकते थे कोई इनका मुसलसल पीछा कर रहा है, लेकिन अली हैदर हालत जुनून में था। उसने कितनी बार सफ़ेद लेक्सिस को ओवरटेक करते हुए लेक्सिस को टक्कर मार दी, उसे याद नहीं था। गार्ड्स की कार बार-बार उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अली हैदर हटने को तैयार न था। अपनी पूरी कुव्वत से उसने आखिरी बार ओवरटेक करते हुए लेक्सिस के सामने पोर्श यकलख्त रोकी, तो सफ़ेद लेक्सिस पोर्श से आ टकराई। वो क़यामत का लम्हा था। अली का दिमाग सुन्न हो गया था और तभी गार्ड्स ने उसे पोर्श से बाहर निकाला। कुत्ते कमीने! अली अंजुम मलिक पर हाथ डालता है। अंजुम मलिक का कार का एक्सीडेंट करेगा। उस रोज़ दोपहर थी और आज रात के साए गालिब आ रहे थे। उस रोज़ उसका बेटा सड़क पर लहूलुहान पड़ा था और आज चौराहे पर लोगों के मजमा में गार्ड्स उसे बूटों से मार रहे थे। अपनी धुंधली निगाहों से उसने अंजुम मलिक को सफ़ेद नेक्सस से निकलते देखा। अंजुम के चेहरे पर छोटा-सा ज़ख्म था। वो गार्ड के हमराह अब एक और कार में बैठ रहा था, जबकि बाकी कार सड़क पर अली हैदर की दुर्गत बना रहे थे। उसे देखते ही अली की आंखों में नफरत दर आई। अपनी पूरी कुव्वत से वो खड़ा हुआ और गार्ड्स की परवाह न करते हुए अंजुम मलिक का गला दबा डाला था। तूने तूने मेरा बेटा मार दिया, कमीने! हवा से बेगाना वो अंजुम मलिक को सड़क पर गिराए चीख रहा था। मैं भी तुझे मार दूंगा। लेकिन गार्ड्स ने अपने मालिक को बचाते हुए उसे दोबारा नरखे में ले लिया। वो अंजुम मलिक के साथ-साथ उसे भी बेहोश करके कार में डालकर चले गए थे। अगले 4 दिन तक मारिया को उसका कोई फ़ोन मौसूल नहीं हुआ। वो 4 दिन तक अली हैदर की राह तकती रही। अरमान समेत हर दोस्त उसे खोज रहा था। उन्हें एक सड़क पर गुमनाम ज़राए के ज़रिए अली की कार मिली थी। सबको अंजुम मलिक पर ही शक था, लेकिन कोई भी इस जैसे असर रसूख पर इस शख्स पर हाथ डालने से घबराता था। 5वें रोज़ अली घर आ गया था। सुर्ख आँखें, चश्मा गायब, फटे हुए कपड़े, नीलो-नील जिस्म और खून बहाते ज़ख्म। मारिया को तो पता भी नहीं चला वो कब आया और कब दोबारा निकल गया। पोर्ट्स गैराज में खड़ी थी। इसके बावजूद वो पैदल ही निकल गया। फैसल एवेन्यू पर चहलकदमी करते हुए वो कहाँ से कहाँ निकल गया था। उसकी हालत इंतहाई ख़राब थी। उसके बावजूद वो कदम उठाता चलता चला जा रहा था। आंसू अब इस कदर बह गए थे कि आंखें मुकम्मल खुश्क हो गई थीं। वो पलक तक नहीं झपक रहा था। इस बेंच पर वो जाने कितनी देर बैठा रहा। बेंच पर बैठे-बैठे जाने कितनी सिगरेटें फूँक चुका था। और तभी इसका कानों में वो महीन सी आवाज़ आई थी। शहद सी शीरीं और मोम सी नर्म आवाज़। वो जाने कहाँ से आ रही थी, जैसे कोई मधुर सा साज़ बज रहा था, जैसे कोई जलपरी साज़ बुन रही थी। जैसे कोई हज़ार दास्ताँ अपने घोंसले में बैठा गुनगुना रहा हो। The good times are gone and all I left to do is mourn. दर्द भरी वो निस्वानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने हौले से चेहरा मोड़ा था। वो इस वक्त पार्क के तारीक गोशे में बेंच पर टांगे फैलाए बैठा था। दूर फेंस के करीब एक लड़कियों का ग्रोह था। वो शायद पिकनिक की गर्ज से पार्क में आई थी। इनमें से ही एक लड़की गुनगुना रही थी। अली ने आंखें बंद किए सुना। यादें उमड़-उमड़ कर उसके चश्मे तख़य्युल में रंग भर रही थीं। क्या बना रहे हो? वो अब अरहम के गालों को बार-बार चूमते हुए सवाल कर रहा था। पोइम उसका बैकग्राउंड है। बच्चा मर गया, उसका बाप रो रहा है। वेरी सैड। और उधर वो लड़की बड़े कर्ब से गा रही थी। अच्छे दिन गुज़र गए हैं और अब मैं मातम करने के सिवा और क्या कर सकता हूँ? The good times are gone and all that I'm left to do is mourn. अली ने आहिस्तगी से आँखें खोली। वो बेंच पर नीम दराज था और लड़कियों का वो गिरोह उससे काफ़ी दूर था। इसके बावजूद उसे लड़की की आवाज़ आ रही थी। इसके बावजूद उसे वो लड़की दिखाई दे रही थी। वो टीनेजर थी, करीबन 17-18 साल की। पिंक फ्रॉक और लंबी सफ़ेद स्कर्ट के नीचे जुराबें पहने वो बहुत प्यारी लग रही थी। बाल पोनी में मुकीद थे और सफ़ेद मफलर गले के गिर्द बंधा हुआ था। इर्द-गिर्द से गुजरने वाले लोग अब इधर-उधर देख रहे थे। सब उसे सुन रहे थे। I have never felt this loss while the time passes by as it tells me of what all love I have lost just to make me cry. वक्त गुजरने के साथ-साथ मुझे ये नुकसान कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सिर्फ रुलाने के लिए ये याद दिलाता है
कि मैंने अपना तमाम प्यार खो दिया है। अली ने आंखें दोबारा बंद कर ली। उसकी नज़रों के सामने अरहम का चेहरा बार-बार घूम रहा था। उसके मोबाइल की बेल बज रही थी। मारिया बार-बार फ़ोन कर रही थी। I love in a world now where I mean nothing to the people I meet, and to whom I meant something have left, leaving me nothing but as a deadbeat. मैं अब इसकी ऐसी दुनिया में रह रहा हूँ जहाँ मुझे मिलने वाले लोगों से कोई शग़फ़ नहीं है और जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं, वो मुझे एक साकिन नब्ज़ की तरह मुर्दा छोड़ गए हैं। अली, अस्पताल के बेड पर लेटी इकरा ने सख्ती से इसका बाजू थामा था। वो आस भरी नज़रों से उसे देख रही थी। अगर मुझे कुछ हो गया, तो तुम अरहम का ख़्याल रखना अली। इकरा, उसे याद आया वो कैसे बिखर गया था, कैसे तड़प कर उसके पास आ बैठा था। मुझे कहने दो अली, मैं अरहम को खुद पालूँगी, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा, तो तो तुम अरहम को पालना। तुम शादी कर लेना अली, तुम और तुम्हारी बीवी अरहम को पालना। ऐसी बातें क्यों कर रही हो इकरा? उसे याद आया। उसने मसनूई खफगी से इकरा को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अली का मुँह ठीक करने के लिए उसका हाथ थाम लिया। क्योंकि मैं अली से बहुत प्यार करती हूँ और अली मुझसे और अरहम से बहुत प्यार करता है। Even these words I slept and woke up with are no longer mine. These thoughts that I scribble, they think are not longer divine. हत्ता कि ये अल्फाज जो जागते और सोते समय मेरे साथ होते हैं, अब मेरे नहीं रहे। मेरा तख़य्युल जो मैं तख्लीक करता हूँ, अब बेजान पड़ा रह गया है। पापा, अरहम बेअख्तियार चीखता हुआ उसके सीने से आ लगा था और उसके हाथ में सुनहरी ट्रॉफी थी, जिसे वो लहराता हुआ बड़े जोश से बता रहा था। मैंने खुद स्पीच लिखी थी पापा, मैंने खुद पढ़कर भी सुनाई। अच्छा, क्या टॉपिक था? उसने दिलचस्पी से पूछा। माय फादर, मेरे वालिद, मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला पापा। फर्स्ट कैसे मिल गया? तुम तो अपने बाप को हर वक़्त डाँटते रहते हो। बात-बात पर बाप को कहते हो सॉरी माँगे। आता हूँ मैं कल तुम्हारे स्कूल। यकीनन किसी टीचर ने धाँधली की है, तुम्हें जितवा दिया होगा। है ना? सच कह रहा हूँ पापा, मैंने खुद नहीं की और मैं तो मज़ाक-मज़ाक में आपको डाँटता हूँ ना, ताकि आप अच्छे डैडी बने रहो, वरना आपको तो आप पता है ना, मैं मम्मी से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अली की नज़रों के सामने वो लहूलुहान जिस्म दौड़ गया तो उसने घबराकर आँखें खोली। नज़रों के सामने भी अंधेरा था। वह बेइख्तियार काँपने लगा, लेकिन फेंस के करीब खड़ी लड़की को देखते ही उसके जिस्म की लर्ज़िश कम हो गई थी। Even with my eyes closed, to me, all my guilt are exposed. मेरी आंखें बंद भी हों तो मुझ पर मेरा कसूर बेनकाब हो जाता है। वो यकजुक लड़की को देखता रहा, ज़हन में हलचल मची हुई थी। ये तेरी वजह से हुआ अरमान, तूने मुझे रेस लगाने पर उकसाया, तेरी वजह से मैंने चैलेंज कबूल किया। तो ये सब ना करता तो मैं रेस ना लगाता। वो लड़का मेरी कार तले ना आता, कोई जलात बदला लेने की खातिर मेरे बेटे के टुकड़े करता। वो मुसलसल चीख रहा था, मुसलसल चीख रहा था। ये तुम्हारी वजह से हुआ है मारिया। तुम मेरी ज़िंदगी में ना आते तो मैं हमेशा अरहम को सीने से लगाए रखता। तुम्हारी वजह से मैं उसे तवज्जो नहीं देखा। तुम्हारी वजह से वो मर गया। वो अब शीशे का लैंप तोड़ते हुए हज़ियानी अंदाज़ में चीख रहा था। ये सब उस लिहाज़दान की वजह से हुआ है। कमीने ने मेरा बच्चा मार दिया, मेरा इकलौता बच्चा, मेरी इकरा का बेटा। वो अब सर पकड़े सोफ़े पर बैठा था, बड़बड़ा रहा था। ये मेरी वजह से हुआ। ना मैं उस रोज़ ड्रिंक करता, ना रेस लगाता और ना किसी लड़की को रोंद देता। मैं ही बुरा हूँ, मैं ही कसूरवार हूँ, मैं ही कातिल हूँ, मैं ही अपने बच्चे का कातिल हूँ। I am wrong, I am wrong. This is all I have known about me all life long. मैं गलत हूँ, यही सब है बस। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने मुतल्लिक़ जान गया हूँ। उसने कहा था अरहम का ख़्याल रखना। वो बेंच पर लेटा बड़बड़ा रहा था। मैं नहीं रख पाया। उसने मुझे कहा कि मुझे ठीक कर दो पापा। मैं नहीं कर पाया। मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। But these things aren't ever going to change. My guilt won't bring him back. लेकिन ये सब अब बदलने वाला नहीं है। मेरा गिल्ट उसे वापस नहीं लाएगा। फेंसेस के पास खड़ी लड़की मध्यम लहजे में बोली तो उसने बेख्तियार सर घुमाकर उधर देखा। I know he's in heaven under the shade of my prayers, in the bed of purple flowers, under
bliss of great mirror. अरहम, अरहम मेरा बच्चा जन्नत में है, मेरा बच्चा अरहम। वो अब लेटे-लेटे मुसलसल बड़बड़ा रहा था जब करीब से गुजरने वाले एक बच्चे ने उसकी बेंच के करीब गिरा हुआ फ़ोन उठाया और उसे उठाया। आपका फ़ोन गिर गया सर। अली ने आँखें खोली और उसे देखा। बच्चा फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अली ने फ़ोन ना लिया। वो एकटुक बच्चे का रोशन चेहरा देखता रहा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने नरम लहजे में पूछा। अफ़सर्दगी अब गायब हो चुकी थी और फ्रेश नज़र आ रहा था। अलबत्ता उसके कपड़े अभी तक फटे हुए थे और जिस्म अभी भी ज़ख्मी था। नाइल, बच्चे ने बताया और उसे देखा। आपका नाम? अली मुस्कुराया। वो उठ बैठा और फ़ोन बच्चे के हाथ से ले लिया। अरहम, मैं अरहम हूँ। बच्चा सर हिलाकर आगे बढ़ गया। उसने फ़ोन जेब में डाला और अब बदली नज़रों से उसे देख रहा था। फेंस के करीब खड़ी पिंक फ्रॉक वाली लड़की गा रही थी। But these things aren't ever going to change. So, as long you, my beloved, are gone. लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला नहीं, जब तक कि तुम मेरे प्यारे उस दुनिया में नहीं हो। लेकिन अरहम ने वो फ़िक्रा नहीं सुना था। अली हैदर की दूसरी शख्सियत जाग चुकी थी। अरहम अली जाग गया था। अब यकतुक पिंक फ्रॉक वाली लड़की को देख रहा था, जो माइक रख चुकी थी और लड़कियां उसे दाग दे रही थी। बहुत अच्छी उष्णा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। उष्णा, उसने उश पर जोर देते हुए नाम अदा किया था। अच्छा नाम है, वो दिल ही दिल में तस्लीम कर गया था।